Hello friends. Today in Elements of Accounts Standard 11, chapter number 1st, Accounting and its terminology. So here our signing star 2019-20 English medium result. Today we are going to learn about some terminology in accounting, discount received and discount allowed. Discount received or discount allowed are cash discount. This discounted is recorded in the books. Discount received is treated as income and discount allowed is treated as an expense. So in mainly yesterday we discussed about types of discount. So one is a trade discount and second is a cash discount. So at the time of transaction of purchase and sales, some of the amount deducted from selling price, it is called trade discount, and the main purpose behind provide trade discount to attract the customer to purchase wholesale goods. And cash discount, so for quickly cash collection, businessman provides some extra discount to customer, that is called cash discount. And the main purpose behind cash discount to attract the customer for quick collection. तो कल हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट लिया था, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट recorded in the books of account, but cash discount is recorded in the books of account. तो जब भी आपने कोई कैश ट्रांजेक्शन या कैश डिस्काउंट है, उसकी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड होता है. नाउ डिस्काउंट रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज ए इनकम and discount allowed is treated as an expense. Now discount received, when a businessman purchase goods and pay less amount which is not paid is called as discount received. This is income of business. Example, goods of 10,000 purchased from Ramila Ben and 2% discount will be allowed if amount is paid in 15 days. If 10,000 are paid to Ramila Ben within 15 days, in this case instead of 10,000, 9,800 after deduction of 2% on 10,000 will be paid. Now 200 will be treated as discount received. This will be recorded in the books. Now discount received. So sometimes when a businessman or a trader purchase a goods and pay less amount, so which is not paid, it is called cash discount or discount received. अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने गुड्स परचेज किया है, अब जो बिल के अंदर जो अमाउंट है उससे उसने कम अमाउंट पे किया है, तो जो अमाउंट उसने पे नहीं किया उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा. तो कई बार बिजनेस के अंदर ऐसा ट्रेडिशन रहता है कि भाई कस्टमर को डिस्काउंट वो प्रोवाइड करते हैं, अब पर्टिकुलर इन कैश ट्रांजेक्शन. जब कैश ट्रांजेक्शन होता तो बिजनेसमैन बोलता है कि भाई आपकी बिल की अमाउंट इतनी है, लेकिन आप हमको क्विकली कैश देते हैं, इमीडिएटली या विद इन 10 डेज या विद इन 15 डेज हम आपको 2% या 5% लेस करके देंगे. तो वो आपको डिस्काउंट अगर मिला है तो वो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगी. एक एग्जांपल से समझते हैं. गुड्स ऑफ 10,000 परचेज्ड फ्रॉम रमीला बैंक.
आपने 10,000 का गुड्स रमीला बैंक से परचेज किया एंड 2% डिस्काउंट विल बी अलाउड इफ अमाउंट इज पेड इन 15 डेज। तो जब आपने रमीला बैंक से 10,000 का गुड्स परचेज किया और उसकी कंडीशन थी कि अगर आप उसको 15 डेज के अंदर अमाउंट पे करते हो तो उससे आपको 2% डिस्काउंट मिलने वाला है। सो एक्चुअली द बिल अमाउंट इज 10,000, बट इफ वी पेड विद इन 15 डेज वी गेट 2% एज 2% डिस्काउंट। अगर हमने 15 डेज के अंदर उसको अमाउंट पे कर दिया तो 10,000 बिल की अमाउंट थी, तो उसके अंदर से आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो वैसे आपको पेमेंट करना था 10,000, लेकिन आपने 15 डेज के अंदर पे किया तो आपको 2% लेस करके वो देगी। तो 10,000 का 2% होता है 200। तो सोचो गुड्स की वैल्यू थी 10,000, लेकिन 200 डिस्काउंट माइनस कर दो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 9,800। So actually the goods amount is 10,000, but if we paid within 15 days, 2% discount allowed by Ramila Bank. So here we have to pay 9,800. So bill amount is 10,000, but if we paid 9,800, so here look 200 will be treated as a discount received. आपको रमीला बैंक को 10,000 पे करना था, उसने बोला था कि विद इन 15 डेज दे दो तो हम 2% लेस करेंगे। आपने 15 डेज के अंदर पे कर दिया तो आपको 10,000 की जगह 9,800 पे करना है, तो आपने 200 कम उसको पे किया तो वो डिस्काउंट आपको मिला है। तो जो डिस्काउंट आपको मिला तो वो आपके लिए हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। नाउ डिस्काउंट अलाउड। So look, the discount allowed when businessman sells goods and receive less amount which is not received, is called discount allowed. This is an expense of business. Example, goods of 15,000 sold to Kalpana Bank. If amount is received in 10 days, 2% discount will be allowed. If collection is received from Kalpana Bank within 10 days, in place of 15,000, so here we deduct 2%. So actual goods amount is 15,000 and 2% that is 300. So 15,000 minus 300 that is 14,700 will be received. Now 300 will be treated as a discount allowed. It will be recorded in the books. This is an expense of business. So discount allowed. So when businessman sells goods to customers and receive less amount, so amount which is not received by businessman is called discount allowed. अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने कस्टमर को गुड्स सेल्स किया लेकिन उसको अमाउंट लेस मिली, कम मिली है, तो जितनी अमाउंट उसको कम मिली है उसके लिए वो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। एंड दिस इज अ एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपको अगर अमाउंट कम मिला तो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला था, तो जब आपको डिस्काउंट मिला तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगी। यहाँ पर डिस्काउंट आपने कस्टमर को प्रोवाइड किया है, तो अगर आपको अमाउंट कम मिलेगी तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे मेरी ट्यूशन की भी 10,000 है और मैंने बोला कि आप मेरे को विद इन 15 डेज ट्यूशन की फ़ी पूरी देते हो तो मैं आपको 1,000 लेस करके दूंगा। अब कोई स्टूडेंट है, उसने मेरे को फ़ी पे की, तो अब मेरी जो कोचिंग की फ़ी है 10,000 लेकिन मेरे को मिला 9,000, तो एक्चुअल माय सर्विस कॉस्ट 10,000 की है लेकिन मेरे को मिला है 9,000, तो जो मेरे को 1,000 कम मिला दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। मैंने
स्टूडेंट को डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, और स्टूडेंट को डिस्काउंट मिला तो उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझो, गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड टू कल्पना बेन, तो आपने कल्पना बेन को 15,000 का गुड्स बेचा है। आपकी कंडीशन थी इफ अमाउंट इज रिसीव्ड 10 days 2% डिस्काउंट विल बी अलाउड। तो जब आपने कल्पना बेन को गुड्स सेल किया तो आपने कंडीशन रखी थी कि अगर कल्पना बेन आपको 10 days के अंदर पेमेंट करेगी तो आप उसको 2% डिस्काउंट देने वाले हो। इफ कलेक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना बेन विद इन 10 days, और सोचो कल्पना बेन ने आपको 10 days के अंदर अमाउंट पे कर दिया तो क्या होगा? एक्चुअली गुड्स अमाउंट इज 15,000, बट एज पर योर प्रॉमिस इफ शी पेज विद इन 10 days वी हैव टू अलाउ 2% डिस्काउंट। तो 15,000 का अगर 2% को तो 300 डिस्काउंट हो जाएगा। तो लेना था 15,000 लेकिन वो 300 कम देगी, तो 14,700 will be received. So actual goods amount is 15,000, but here we received 14,700. So 300 will be treated as discount allowed. Discount allowed का मतलब आपने कल्पना बेन को डिस्काउंट दिया है, तो that is called discount allowed and it is our expense. क्योंकि आपको कम मिला ना, 15,000 की जगह 14,700 मिला, तो आपको जो 300 कम मिला वो डिस्काउंट अलाउड है, आपके लिए एक्सपेंस है। लेकिन कल्पना बेन को डिस्काउंट मिला तो उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स दिस इज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा। नाउ डेप्रीशिएशन, depreciation is the expense of business. Every year the value of asset is reduced by certain rate. Amount which is reduced is called as depreciation. Before making tax payment to the government, depreciation is deducted. Depreciation is a non-cash expense of the business. Now depreciation. Now what is depreciation? So whenever we use any asset, but after certain time the value of asset reduced, an amount which is reduced, it is called depreciation. अगर आप कोई भी एसेट है आप उसको यूज करते हो, तो आप उसको यूज करोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जितनी अमाउंट उसकी रिड्यूस हुई है इट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। जैसे आपने जब एक्टिवा परचेस किया तो एक्टिवा या जुपिटर या बाइक है, जब परचेस किया तो उस टाइम उसकी वैल्यू 80,000 थी, 80। लेकिन आपने एक साल यूज किया तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू 80,000 नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उसका यूज किया तो उसका जो स्पेयर पार्ट्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो उसकी जो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी एंड दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। मतलब 80,000 का एक्टिवा या जुपिटर आफ्टर 1 ईयर 70,000 या 60,000 का हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 10,000 या 20,000 रिड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो कोई भी एसेट है आप जैसे जैसे यूज करोगे तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। जैसे आपके घर में टेलीविजन या रेफ्रिजरेटर है, तो आप जितना उसका यूज करोगे उतनी उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। और दरेक कोई भी एसेट है उसकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। जैसे ह्यूमन की एक्सपेक्टेड लाइफ 90 या 95 है, तो कोई भी एसेट है उसकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ रहती है। आफ्टर एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और कई बार तो आपको स्क्रैप में देना पड़ता है। जब आपने रेफ्रिजरेटर लिया तो 50,000 का था, लेकिन विद इन 5 ईयर्स 7 ईयर्स द वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर रिड्यूस हो जाएगी एंड दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन।
हम उसको गुजराती में घसारो बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप एसेट यूज करते हो तो उससे सर्टेन वैल्यू ऑफ एसेट रिड्यूस, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। और मेन पर्पस ये है कि डेप्रीशिएशन क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है। कोई भी बिजनेसमैन है वो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेगा। इंडिया के अंदर इनकम टैक्स का रूल है कि आपको इनकम टैक्स पे करने से पहले आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि एक बार एसेट है उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा, बट आफ्टर एक्सपेक्टेड लाइफ जब आपको न्यू एसेट परचेज करनी है तो आप अमाउंट कहाँ से लाओगे। जैसे एशियन टाइल्स है, समझ लो एशियन टाइल्स ने उसने एक मशीनरी 1 करोड़ के अंदर परचेज की। अब मशीनरी के लाइफ सपोज 10 ईयर्स है, तो आफ्टर 10 ईयर्स आपको न्यू मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन दैट इज 1 करोड़ and expected life is 10 years, so 1 crore divided by 10, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 मतलब 10 लाख का डेप्रीशिएशन हुआ, क्योंकि वैल्यू है 1 करोड़ और एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 ईयर्स, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो दैट इज 10 लाख डेप्रीशिएशन। तो एशियन टाइल से वो फर्स्ट 10 लाख का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेगी, और एक्चुअली डेप्रीशिएशन की अमाउंट आपको किसी को देनी नहीं है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, आपको किसी को पे नहीं करना है। वो 10 लाख का डेप्रीशिएशन आपके पास ही रहेगा, आपको बैंक में डाल देना है। फर्स्ट ईयर का 10 लाख, सेकंड ईयर का 10 लाख, थर्ड ईयर का 10 लाख, फोर्थ ईयर का 10 लाख, ऐसे हर साल 10 लाख 10 लाख। तो जब आफ्टर 10 ईयर्स जो मशीनरी है वो प्रॉपरली सपोज वर्क नहीं कर रही, तो आपको न्यू मशीनरी परचेज करनी है, तो पर ईयर आपने 10 लाख किए थे, तो 10 ईयर्स के अंदर 1 करोड़ हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट। तो उससे आप नई मशीनरी मार्केट से अंदर से परचेज कर सकते हो। तो मेन रीजन यही है डेप्रीशिएशन का। एंड एज पर इंडियन इनकम टैक्स रूल, बिफोर मेकिंग टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट डेप्रीशिएशन इज डिडक्टेड। इंडिया के अंदर रूल है कि गवर्नमेंट को आपको इनकम टैक्स पे करना है, उसके पहले आपको डेप्रीशिएशन डिडक्ट करना चाहिए, और वो अमाउंट आपके पास रहेगी। तो जब फ्यूचर के अंदर आपको कोई न्यू एसेट परचेज करनी है तो वो डेप्रीशिएशन के अमाउंट के अंदर से आप न्यू परचेज कर सकते हो। सो अगेन आई रिपीट, एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ एसेट इज रिड्यूस्ड बाय सर्टेन रेट, amount which is reduced, it is called depreciation. Now bad debt, when goods sold on credit by the business person to whom goods sold is debtors of the business, from him the amount of sales is to be collected. Many times, look this word, many times debtors of business not be in a position to pay full amount due to his weak financial condition. If the amount is not collected even after the necessary effort, the amount which is not received is known as a bad debt. Bad debt is not an expense of business, but it is a loss. So, in every business, goods sold to the customers on credit, कई बार आपके पास जो कस्टमर आता है उसको आपको क्रेडिट में सेल करना पड़ता है। एंड व्हेन गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, so those customers are known as debtors. आपने जिस कस्टमर को क्रेडिट के अंदर सेल किया है तो वो आपके लिए डेटर्स हो जाएगा, तो फिर आपको उसके पास से फ्यूचर के अंदर अमाउंट कलेक्शन करनी पड़ेगी। बट मैनी टाइम्स डेटर्स इन अ फाइनेंशियल क्रिटिकल कंडीशन, कई बार क्या होता है कि आपने डेटर्स को क्रेडिट में सेल तो किया है,
लेकिन जो डेटर्स है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब वो पे नहीं कर सकता आपको अमाउंट, ऐसी पोजीशन में आ जाता है। समटाइम्स हिज लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट, कई बार ऐसा भी होता है बिजनेस के अंदर, कई बार रिसेशन पीरियड आ जाता है, उसकी इनकम कोई अच्छी नहीं होती, ऐसा हो सकता है। सो मैनी टाइम्स डेटर्स ऑफ बिजनेस मे नॉट बी इन पोजीशन टू पे फुल अमाउंट ड्यू टू हिज फाइनेंशियल कंडीशन। आप उसके पास कलेक्शन के लिए बार बार जा रहे हो लेकिन उसके पास अमाउंट नहीं है, उसने बोला 1 वीक के बाद दूंगा, अब 2 वीक हो गया, 3 वीक हो गया, अब मैक्सिमम टाइम कलेक्शन के लिए जा रहे हो, बट कस्टमर इज नॉट एबल टू पे योर अमाउंट। आप फोन करते हो, फोन रिसीव नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है। सो इफ द अमाउंट इज नॉट कलेक्टेड इवन आफ्टर द नेसेसरी एफर्ट, आपने बार बार एफर्ट लगाई उसके पास कलेक्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको अमाउंट नॉट कलेक्टेड, आपको अमाउंट नहीं मिली, द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड इज नॉन एज बैड डेट। तो बार बार आपने ट्राई किया फिर भी आपको अमाउंट नहीं मिल रही, आपने नेसेसरी एफर्ट लगाए तो भी नहीं मिल रही, तो फिर आपको लगेगा भाई जाने दो, अब ये अमाउंट कभी मेरे को नहीं मिलने वाला है। So this amount is not received, that is written off and it is called bad debt। ये bad debt हो जाएगा। हम गुजराती लोग बोलते हैं वो टोपी पहना के चला गया, टोपी, हम टोपी वर्ड यूज करते हैं। कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग रहते, अरे यार दक्ष 50 रुपीज़ देना, यार 100 रुपीज़ देना, मैं तेरे को कल दे देता हूँ। अब कितनी भी बार फिर कलेक्ट, वो मेरा 50 रुपीज़ दे दे यार, मेरा 100 रुपीज़ दे दे, आप बार बार कलेक्शन कर रहे हो लेकिन वो आपको अमाउंट नहीं दे रहे, तो आप बोलते कि ये गया मेरा पैसा 100 रुपीज़, ये नहीं मिलने वाला। सो आफ्टर नेसेसरी एफर्ट द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड, आपने बहुत सारा ट्राई किया फिर भी नहीं मिल रहा, तो सच अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट। एंड बैड डेट इट्स अ वन काइंड ऑफ लॉस, वो बिजनेस के लिए तो लॉस होगा ना, अमाउंट कलेक्शन नहीं हुई। कई बार हमारे अंदर भी ऐसा होता है, हम स्टूडेंट को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, कई स्टूडेंट को बार बार बोलते भाई आप फीस दो, फीस दो, फीस डिपॉजिट करवाओ, लेकिन हमने बहुत सारे नेसेसरी एफर्ट किए फिर भी उससे पास से फी नहीं मिलती, तो हम फिर थक के छोड़ देते कि चलो ये अमाउंट नहीं मिलने वाली। द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, सच अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट। सिंपली वर्ड के अंदर आपको किसी से अमाउंट लेना है, आप नेसेसरी एफर्ट लगाते हो फिर भी आपको अमाउंट नहीं मिलती, तो जो अमाउंट आपको नहीं मिलती वो आपके लिए बैड डेब्ट हो जाएगा, एंड बैड डेब्ट इज अ लॉस फॉर बिजनेस। नाउ सॉल्वेंट, in accounting a person who pays his financial obligations, financial obligation means liabilities, regularly, and whose assets are more than liabilities, that person is known as a solvent person। So solvent, हमारी गुजराती लैंग्वेज में उसको सद्दर बोलते हैं, ये पार्टी यार सद्दर है, कोई टेंशन नहीं लेने का। सो इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु पेज हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली, जो भी पर्सन है उसके पास जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है वो रेगुलर पे कर रहा है, एंड whose assets are more than liabilities, उसके पास एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, so that person is known as a solvent। तो वो solvent हो जाएगा। solvent means he is capable to pay his liabilities, मतलब वो capable है, उसके पास जो liability है वो पे कर सकता है। and I hope you all students are solvent। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सब solvent condition के अंदर होगे तो मेरे को रेगुलर फीस भी मिलती रहेगी। so solvent means in accounting a person who pays his financial obligations regularly,
तो जो भी पर्सन है वो फाइनेंशियल उसकी जो लाइबिलिटी है वो रेगुलरली पे कर रहा है। कोई भी क्रेडिटर्स है तो वो इमीडिएटली अमाउंट उसको पे कर देता है। एंड वूज एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज, उसकी जो एसेट है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा है। सो दैट पर्सन इज नॉन एज सॉल्वेंट पर्सन। नाउ इनसॉल्वेंट, दैट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ इनसॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट का ऑपोजिट ले रहे हैं इनसॉल्वेंट। In accounting, a person who does not pay his financial obligations regularly, it means he is not in a position to pay these obligations whose assets are less than liabilities. That person is known as an insolvent person unless the person is declared insolvent by the court. He cannot be treated as an insolvent. Insolvent, any person pays financial liabilities regularly and whose assets are more than liability, that person is called solvent person. Now opposite of solvent, that is insolvent. A person who does not, look the word, who does not pay his financial obligations regularly. It means he is not in a position to pay his financial obligation and whose assets are less than liabilities. ऐसा कोई पर्सन है जो उसकी फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज है वो रेगुलरली पे नहीं कर रहा, और whose assets are less than liabilities, मतलब उसके पास एसेट कम है और लाइबिलिटी ज़्यादा है। एसेट्स आर लेस देन ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज मतलब एसेट कम है और लाइबिलिटीज ज़्यादा है। एंड दैट पर्सन इज नॉन एज इंसॉल्वेंट, लेकिन वो खुद को इंसॉल्वेंट नहीं बुला सकता। इंसॉल्वेंट पर्सन इज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। Unless the person is declared insolvent by the court, he cannot be treated as insolvent. तो कई बार ऐसे कोई डेटर्स रहते हैं जिनके पास फाइनेंशियल वीक कंडीशन है और सभी लोग उसके घर पे कलेक्शन के लिए बार बार आ रहा है, तो वो फिर कोर्ट के अंदर अपील करेगा कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे कर सकता। तो फिर कोर्ट जो है वो एक लॉयर को अपॉइंट करती है। वो लॉयर उसकी एसेट कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज क्या, उसकी स्टडी करता है, और फिर लॉयर कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करता है कि भाई इसके पास एसेट इतनी है और लाइबिलिटी इतनी है। वो एसेट बेचकर भी सभी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता, तो कोर्ट उसको इनसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है कि भाई ये इनसॉल्वेंट है। हम गुजराती लोग बोलते हैं ये पार्टी उठ गई, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो कोर्ट उसको इनसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है कि ये इनसॉल्वेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली रीड करते हो तो उसमें पब्लिक नोटिस आती है, गुजराती में जाहिर नोटिस, और कोर्ट किस पर्सन को इनसॉल्वेंट डिक्लेयर किया उसका डिक्लेरेशन भी देती है। तो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर सकते इंसॉल्वेंट, बट ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंसॉल्वेंट। सो अ पर्सन who does not pay his financial obligations regularly, it means he is not in a position to pay this obligation and whose assets are less than liabilities, that person is known as insolvent। तो वो आपके लिए insolvent हो जाएगा। तो फिर कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी और उसकी जितनी भी एसेट है वो कोर्ट का जो लॉयर है अपॉइंट किया है वो उसके पास से सभी एसेट ले लेगी कोर्ट। फिर वो जितनी भी एसेट है उसका ऑक्शन, जिसको आप हराजी बोलते वो कर देगी और सभी उसकी एसेट बेच दी जाएगी, और उसमें से लाइबिलिटी थोड़ी थोड़ी पे होगी। मतलब पूरी तो आप लाइबिलिटी पे नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा 40%, 50% जितने भी क्रेडिटर्स है उसका लिस्ट मंगवाएगी भाई किसको पैसा लेना है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पेमेंट करेगी। अभी आप देखते हो जो विजय माल्या है
तो सभी बैंकों को 9,000 करोड़ लेना है, उसने लॉन्ग लिया था किंग फिशर के लिए। अब कोर्ट है वो सब बोलेगी भाई बैंक को कि भाई उसकी सभी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर दो, उसको सील कर दो। फिर उस विजय माल्या की जितनी भी प्रॉपर्टी वो मार्केट के अंदर बेची जाएगी और उसके अंदर से जो अमाउंट मिलेगा उसमें से थोड़ा थोड़ा जिसको देना है उसको पेमेंट करेगी। और कोर्ट को लगेगा कि वो कैपेबल नहीं है तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकती है। नाउ डेबिट एंड क्रेडिट। There are two important words of accounting. Every transaction has two effects in double entry system, debit and credit. True and fair understanding of debit and credit is true and fair understanding of accounting. तो जो पूरा अकाउंट है स्टूडेंट्स, आपका जो पूरा अकाउंट है ये दो वर्ड पर है, डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, उसके जो रूल है आपको सेकंड चैप्टर में सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही लिखा है और जब सेकंड चैप्टर होगा तब आपको इजीली मालूम हो जाएगा व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। यहाँ तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही देखना है। सो देर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम every transaction having two effect डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट के अंदर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो उसकी दो इफेक्ट हो जाएगी, कहीं पर भी दो इफेक्ट होगी। जैसे आपने स्टेशनरी परचेज की तो स्टेशनरी परचेज की उसकी भी दो इफेक्ट हुई। एक, आपको क्या मिला स्टेशनरी, दूसरी आपने क्या पे किया कैश, तो दो इफेक्ट हो गई, स्टेशनरी मिली लेकिन कैश गया। कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपकी दो इफेक्ट कंपलसरी होगी। जैसे आपने रिलायंस के मॉल में से प्रोविजन की आइटम परचेज की तो प्रोविजन की आइटम मिली लेकिन कैश पे किया। आपने सैमसंग का मोबाइल परचेज किया तो आपको मोबाइल मिला बदले में कैश गई, तो दो इफेक्ट कोई भी ट्रांजैक्शन की होती है। सेकंड चैप्टर में मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा डेबिट क्रेडिट क्या रहता है। इन अकाउंटिंग two sides are used. The left hand side in accounting is called as a debit side and right hand side is in accounting is called credit side. तो अकाउंट के अंदर दो साइड रहती है, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, तो अकाउंट के अंदर भी दो साइड रहती है। जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर डेबिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं और जो राइट हैंड साइड है वहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखाता हूं, लुक दिस। अभी कोई नाम मेंशन नहीं किया, एक अकाउंट है, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो नंबर, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो अमाउंट। ये जर्नल आपको मैं थर्ड चैप्टर में सिखाऊंगा, अभी सिर्फ आपको देखना है। So in this account there are two sides. This is left side, this is left side and this is right side. So left side, left hand side in accounting is called debit. इसको डेबिट बोलते हैं और शॉर्ट में DR, D for debit, R for record, debit record. And look, this is the right side and right side hand side is called credit side, CR for credit record. तो अकाउंट के अंदर टू साइड रहती है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वहां पर डेबिट रहता है, तो जो डेबिट के ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड होते हैं डेट, डे बाय डे, और यहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, दिस इज द क्रेडिट साइड। तो अभी तो आपको सिर्फ याद ही रखना है, जब सेकंड चैप्टर होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द लेफ्ट हैंड साइड इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड डेबिट साइड and right hand side in account is called credit side. Now account,
business transaction pertaining to certain items and person would take place frequently. This transaction may be of debit side having debit effect, may be of credit side having credit effect. Transaction pertaining to respective items or person is recorded at one place from where the summary of transaction of that item or person can be obtained. It is called account. Example, Pushpaben is a customer of business. Goods are sold on credit to her. Assume that credit sales are made 20 times in a year and she also settle her account 20 times. Now there will be 20 into 2, 40 transactions with Pushpaben during the year. All these transactions are recorded at one place in the books of account. तो बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन रहते हैं वो कई बार कई सारे पर्सन के साथ रहते हैं और कई बार जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डेबिट साइड भी रिकॉर्ड होते हैं या क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि उसका पूरा आइडिया आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा. So transaction pertaining to respective items or person is recorded at one place from where the summary of transaction of that item or person can be obtained. It is called account. कोई भी पर्सन के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है तो उसको एक प्लेस पर रिकॉर्ड करने के लिए जो एक समरी बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड अकाउंट. और हर जगह ये अकाउंट वर्ड होता है. जैसे आप बैंक के अंदर कितने सारे कस्टमर का अकाउंट होगा, समरी होगी, क्योंकि कस्टमर अमाउंट डिपॉजिट भी करेगा और विड्रॉ भी करेगा. तो वो समरी के लिए एक रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंट. स्कूल के अंदर भी आपका अकाउंट होता है कि भाई इतनी फीस में से कितनी अमाउंट उसने पे की, कितनी लेनी बाकी है. याद करो, कई बार आप प्रोविजन स्टोर पे जाते हो, क्रेडिट में लिया है तो कई लोग बोलते हैं जरा अंकल देखो हमारे खाते में कितना अमाउंट देना बाकी है. तो उसके पास जो बुक्स रहती है उसके अंदर देखता है कि भाई हाँ इतना अमाउंट लेना बाकी है. जैसे पुष्पा बहन इज अ कस्टमर ऑफ बिजनेस, आपके कस्टमर हैं. गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट में उसको सेल किया है. और सपोज सोचो आपने क्रेडिट सेल्स 20 टाइम किया है, 20 टाइम्स आपने पुष्पा बहन को क्रेडिट में गुड्स बेचा है. एंड सी ऑल्सो सेटल हर अकाउंट 20 टाइम्स. आपने 20 टाइम्स क्रेडिट सेल किया, उसने 20 टाइम्स आपको उसका अकाउंट सेटल किया. तो पूरा ट्रांजेक्शन 20 टाइम्स सेल्स का और 20 टाइम उसने अमाउंट दिया उसका, तो 40 ट्रांजेक्शन है. और 40 ट्रांजेक्शन आपकी मेमोरी में तो नहीं रहेगा, तो एक समरी बनाएगा बैंक के जैसे अकाउंट के अंदर. सो ऑल दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड एट वन प्लेस. तो वन प्लेस के ऐसा होगा जिसके अंदर पुष्पाबेन के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे और वो जो रिकॉर्ड है उसको बोलते हैं अकाउंट. तो यहां पर पुष्पाबेन का एक अकाउंट बना के सिखाता हूं मैं आपको. लुक दिस अकाउंट, आगे हमने डिस्कशन किया था. पुष्पा बैंक अकाउंट हो गया, यहाँ डेबिट साइड है और यहाँ पर क्रेडिट साइड. जब आपने उसको गुड्स बेचा था, अमाउंट लेना, तो ये डेबिट साइड पे यहाँ पे रिकॉर्ड होगा. और जब पुष्पा बहन आपको अमाउंट देने आएगी तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा. तो अगर पुष्पा बहन के अकाउंट में कितना लेना है तो आप डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट का माइनस करो तो कितना अमाउंट लेना बाकी है हो जाएगा. जैसे 1 लाख का गुड्स क्रेडिट में सेल किया है, 1 लाख का, और यहाँ पे 50,000 आ चुका था. आप बोलोगे भाई 1 लाख का क्रेडिट सेल है, आपने 50,000 दे दिया, तभी आपको 50,000 पे करना बाकी है. तो अगर आपको अकाउंट सेटल करना तो 50,000 दे दो. कई बार आप स्कूल में जाते हो ना तो बोलते जरा देखो तो मेरी फी कितनी बाकी है. तो जो स्कूल का जो क्लर्क है उसके पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर सब स्टूडेंट के
अकाउंट बनाए होते हैं, आपने बोला तो उसने डाला भाई चारुल शाह कि भाई स्कूल की फी 25,000 है और आपने 5,000 दिया है तो आपको 20,000 देना है। तो इजीली आपको मिल जाएगा भाई एक समरी कि भाई कितना अमाउंट लेना है। और ये जो अकाउंट है वो आगे सेकंड या थर्ड चैप्टर के अंदर हम डीपली सिखाएंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देखना है। तो ऐसे आप ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट बना सकते हो, पुष्पा बहन का अकाउंट, दक्ष अकाउंट, जितने कस्टमर है उतने आप अकाउंट बना सकते हो, दिव्यराज अकाउंट, दृष्टि शाह अकाउंट। तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी भाई कितना अमाउंट किससे लेना है। तो यहाँ पर पुष्पा बहन ने 20 ट्रांजेक्शन किए थे सेल के और 20,000 पेमेंट किया, तो 40 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एक ही जगह होगा। ये पूरा पुष्पा बहन का अकाउंट है, यहाँ पे सब ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तो फिर मालूम हो जाएगा भाई आपको कितना कलेक्शन पुष्पा बहन से करना है। तो ऐसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे, तो इतना आप सब नोटबुक के अंदर लिख लेना अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं अकाउंटिंग सिस्टम दिखाऊंगा, देसी नामा, डबल एंट्री सिस्टम का रिकॉर्ड कैसे होता है। देन वी डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंट। तो प्लीज़ ये लिख लेना। थैंक यू वेरी मच।